So welcome back everyone. आज फाइनल डे है हमारा 5 days training, ऑनलाइन इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग फॉर न्यूली प्रमोटेड वाइस प्रिंसिपल्स। तो आज हमारे पहले सेशन के लिए हमारे साथ हैं मिस मैथिली विक्टर, ओएसडी प्राइमरी एंड लाइब्रेरी। She started her career with Ministry of Information and Broadcasting, where she served for 10 years in the central services at the age of 20. However, the teaching bug caught her and she found her calling in this profession. Recruited directly as PGT Economics in the year 1991, she has had a satisfying teaching career for 21 years till she became a vice principal in 2013. Soon after, she was selected by UPSC as principal. Her forte has been working on looking at workable solutions and innovations. Handpicked to set up two branches, the library branch and the primary branch at the Directorate of Education has been the turning point in her career and has seen a 360 degrees change in primary education as well as library enrichment. She has presented more than 2,000 television programs and on All India Radio. And today she is here to guide us on how to improve primary education in DOE schools. Welcome, Mathili ma'am. Thank you very much, Nishtha. First of all, a very hearty congratulations to all of you to have become vice principals. Having a few months experience down the line, you must all be feeling how different it is on the other side of the table. The other side of the table, your entire perception changes. You become a macro person because now you've got to know how to handle things on a macro level. Earlier, it was just our subject and, our syllabus, our students. Now it is the entire school that you're looking after. So I'm sure that you all have found a very, very significantly enriching training in these last 4 days. Today being the ultimate day, here I am with some insight into the working of the primary branch. So I think I would like to start with a PowerPoint presentation. Can I request Nishtha to help me with this, please? Kindly bear with us. Might take a few minutes. So thank you very much, Nishtha. How did it all begin? Our schools have been Sarvodaya Vidyalayas for quite some time. So many of these Sarvodaya Vidyalayas started from KG and school ran up till class 12. With so much focus on class 10 and class 12, it is not surprising that the head of the school found it difficult to manage the primary sections. So thereafter, in 2017, a landmark initiative was taken and the primary branch was set up at the Directorate of Education. The focus of the primary branch has been to improve the quality of education in all its primary classes. To that end, we begin with the alarm bell. Why was it that students from the Sarvodaya Vidyalayas itself were not performing very well in terms of functional literacy and numeracy when they reached class 6? Why are there reading gaps in children from Sarvodaya Vidyalayas? Such questions made it imperative कि हम लोग एक बेसलाइन असेसमेंट करने का जो प्लान बना वो इसी की वजह से बना और 2017-18 में एक बेसलाइन असेसमेंट किया गया जिसमें लर्निंग अचीवमेंट में इतने गैप्स नजर आए रीडिंग प्रोफिशिएंसी में, यानी कि जो 4 इंटीग्रेटेड स्किल्स होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग
एंड राइटिंग, इन चारों में ही बहुत सारे गैप्स नजर आए। तो ये महसूस हुआ कि हमें प्राइमरी एजुकेशन पर खासा ध्यान देने की जरूरत है। सो बच्चे ना केवल सुनने में भी, लिसनिंग में भी लिसन कर रहे थे, बट उसका कॉम्प्रिहेंशन नहीं हो रहा था। सुन रहे थे पर बोल नहीं पा रहे थे, बोल पा रहे थे पर रीडिंग में अटक रहे थे, या रीडिंग भी कर लेते थे, लिखने में प्रॉब्लम आती थी। तो हर तरीके का एक बेसलाइन असेसमेंट आप सब जानते होंगे एज टीचर्स कि प्राइमरी में ये बेसलाइन असेसमेंट किया गया हिंदी में और मैथ्स में। उसके बाद 2019 तक चलते चलते मिशन बुनियाद भी शुरू हुआ, और खास इन बच्चों की जो कमियां हैं, जो लर्निंग गैप्स हैं, उनको पूरा करने के लिए एक मिशन मोड पर काम किया जाना शुरू हुआ। कुछ आपके 2019 की डेटा आपकी स्क्रीन पर है। डेटा इररिलेवेंट नहीं है, लेकिन हमारे इस आज के डिस्कशन में सिर्फ एक पॉइंटर है कि क्यों प्राइमरी एजुकेशन पर हमें इंपॉर्टेंट या फोकस देने की जरूरत महसूस हुई। तो प्राइमरी ब्रांच जून 2017 में हेडक्वार्टर्स में डेडिकेटेड रूप में बना, जिसका सिर्फ ये काम था और काम है कि हम प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करें और इसमें जितना रिफॉर्म ला सकें हम यहाँ पर करें। तब से ये कोशिश जारी है। जो पहला इनिशिएटिव प्राइमरी ब्रांच की तरफ से हुआ वो ये कि हर सर्वोदय विद्यालय में एक प्राइमरी इंचार्ज होगा। प्राइमरी इंचार्ज असिस्टेंट टीचर्स में से ही है, जो डायनेमिक हो, जो कार्य को संभाल सके और प्राइमरी टीचर्स के साथ कोलैबोरेटिव लर्निंग करे और एक पीयर मेंटोर के रूप में आए। बहुत बाद में टीडीसीज बने और टीडीसीज सीनियर क्लासेस सेकेंडरी 6th ऑनवर्ड्स कर रहे हैं, और वही काम 2017 से ही प्राइमरी स्कूल में या प्राइमरी लेवल में शुरू हो चुका था। प्राइमरी इंचार्ज का काम ऑब्जर्वेशन नहीं है, या वो सुपरवाइजर नहीं है, या वो इंस्पेक्टर नहीं है, वो सिर्फ एक नोडल पर्सन है जो एचओएस के साथ मिलकर प्राइमरी में की जाने वाली सारी इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट कर सके और डे टू डे प्राइमरी के मैनेजमेंट में हाथ बटा सके। सो आपके एफर्ट्स एज एचओएस, अगर आप स्कूल में एचओएस हैं या वाइस प्रिंसिपल भी हैं, तो आपके एफर्ट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको मजबूती देने के लिए प्राइमरी इंचार्ज का रोल रहेगा, ना कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को कम करने के लिए। प्राइमरी इंचार्ज बहुत स्ट्रिक्टली एक कोर करिकुलर एक्टिविटीज का कोऑर्डिनेटर एंड एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की तरह डिजाइन किया गया है, और उन्हें जो रोजमर्रा के काम हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उनको ना दिए जाने की गाइडलाइंस हैं। लेकिन ये भी बात है कि जहां पर टीचर्स की कमी है या आपके पास स्टाफ नहीं है, तो शायद इनको कुछ थोड़ा बहुत काम आपने दिया होगा, और दैट इज अनअवॉइडेबल। प्राइमरी इंचार्ज के लिए ये भी एनविसेज किया गया कि इनको हम क्लास टीचरशिप ना दें। तो फिर ये बात उठी कि अगर हम इन्हें क्लास टीचरशिप नहीं देंगे तो क्लासेस कौन पढ़ाएगा, इनकी एक क्लास होगी। तो बहुत ही कोशिशों के बाद ये बात अप्रूव की गई कि अगर आपके जितने भी सेक्शंस हैं आपके स्कूल में, आपको +1 प्राइमरी इंचार्ज का प्रावधान किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपके स्कूल में जितने सेक्शंस हैं उतने असिस्टेंट टीचर्स के साथ साथ एक एक्स्ट्रा असिस्टेंट टीचर की सैंक्शन नहीं है, तो आप कृपया फाइल बनाएं और अपने डीडी जोन से सिर्फ एंडोर्स करके प्राइमरी ब्रांच में जमा करा दें। E4 के साथ और एस्टैब्लिशमेंट के साथ हम आपके केस को परस्यू करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ही जल्दी +1 असिस्टेंट टीचर मिले जो कि इस प्राइमरी इंचार्ज की ड्यूटी को संभाल सके। सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स में आपको बिल्कुल भी लैक्सिटी नहीं रखनी है। सीसीटीवी उन एरियाज में एम्पल अमाउंट में होना चाहिए जहां पे प्राइमरी बच्चों की मूवमेंट खासा है, खासकर इनके वॉशरूम्स के बाहर। और हाँ, इनके वॉशरूम्स में चाहे वो सर्वोदय बाल विद्यालय है, चाहे वो सर्वोदय विद्यालय है या कन्या विद्यालय है, इनके वॉशरूम्स के लिए आप इंसिस्ट कीजिए कि फीमेल सैनिटरी वर्कर ही अपॉइंट की जाए। सीनियर स्टूडेंट या लैब असिस्टेंट प्राइमरी क्लासेस के लिए नहीं आएंगे। अब सीनियर टीचर को आप
डिवोट करा सकते हैं कोई क्लास अगर आपके पास असिस्टेंट टीचर्स की कमी है। लेकिन रिक्वेस्ट अगेन कि रिवर्स ना कीजिएगा, असिस्टेंट टीचर्स को ऊपर की क्लासेस में मत लेके जाइएगा। आप उनको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के लिए प्रोत्साहित करें और अपने प्राइमरी इंचार्ज के साथ मिलकर डेली एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के लिए कोशिश की जाए। कई स्कूलों में हमने देखा है कि क्लासेस को क्लब कर दिया जाता है और जो एक एक्स्ट्रा असिस्टेंट टीचर वहां से फ्री हो जाती हैं उन्हें बड़ी क्लासेस में डिप्यूट कर दिया जाता है। माय रिक्वेस्ट इज कि आप ऐसा ना करें। क्लबिंग कभी कभी अनअवॉइडेबल है, जैसे आपके स्कूल की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आप क्लासेस क्लब कर रहे हैं, लेकिन क्लबिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने डीडी जोन को जरूर इन्फॉर्म कीजिए कि क्या कारण है जिसकी वजह से आप क्लब कर रहे हैं। क्लब करने पर एक टीचर मत फ्री कीजिएगा, दोनों टीचर्स ही साथ साथ उस क्लब क्लास में रहें। एक टीचर पढ़ा रहे हैं, एक टीचर सपोर्ट में है, तो बल्कि बच्चों की लर्निंग बहुत अच्छे से हो सकेगी। तो बेसिकली प्राइमरी इंचार्ज ने हैंड होल्डिंग का काम करना है, एक पॉजिटिव कल्चर और वर्क एथिक प्राइमरी में स्थापित करना है और जितने भी हमारे चेंजेस हैं, जितने भी हमारे गाइडलाइंस हैं, जितने भी हमारे पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने में और आपका सहयोग देने में प्राइमरी इंचार्ज का मेजर रोल रहेगा। तो आप जैसे देखेंगे कि अगर प्राइमरी इंचार्ज भी असिस्टेंट टीचर ही है तो वो एक पीयर मेंटोर के रूप में जब क्लास में बैठेगा, पूरा टाइम पूरे क्लास ऑब्जर्व करेगा, तो ऑब्वियसली क्लासरूम को सपोर्ट मिलेगा, क्लासरूम प्रैक्टिसेस में बेहतरी होगी और दोनों मिलकर रिफ्लेक्शन कर सकेंगे कि कहाँ पर हम चूक गए, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, क्या इस क्लास की स्ट्रेंथ्स रही और इस क्लास की अच्छी प्रैक्टिसेस अगर हैं तो हम उसे और क्लासेस में भी कैसे ले जा सकते हैं। ये सब चर्चा टीचर्स में ही आपस में होती है एंड वी हैव सीन दैट रिजल्ट्स आर वेरी प्रॉमिसिंग। इसके अलावा प्राइमरी इंचार्ज की ड्यूटीज एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक जो रहेंगी वो रहेंगी टाइम टेबल बनाना, जितने भी इनिशिएटिव्स हैं डिपार्टमेंट की ओर से उन सब का प्लेसमेंट उस टाइम टेबल में होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि 22 जून 2017 और 22 जून 2018 इन दोनों को एक सर्कुलर निकला है प्राइमरी के लिए, जिसमें प्राइमरी इंचार्ज की ड्यूटीज से लेकर और भी बहुत सारे गाइडलाइंस हैं, तो आप उसे जरूर रेफर कीजिएगा। वंस अगेन 22nd of June 2017 एंड 22nd of June 2018 प्राइमरी ब्रांच का सर्कुलर है। प्राइमरी ब्रांच की आईडी 600109। तो अगर आप सर्कुलर्स ब्रांच वाइज में जाएंगे तो वहां पर आपको प्राइमरी ब्रांच का आइकन मिलेगा एंड फ्रॉम देयर यू कैन सी ऑल द सर्कुलर्स जो आज तक प्राइमरी ब्रांच से इश्यू हुए हैं। ये पीयर मेंटोर जिन्हें हम प्राइमरी इंचार्ज का नाम दे रहे हैं वो दिन में 2 क्लासेस जरूर बैठेंगे और उस क्लास की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, डिस्कशंस उन टीचर के साथ क्लास के बाद करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द डे एचओएस, यानी अगर आप एचओएस है तो आपके पास या वाइस प्रिंसिपल है तो आपके पास जरूर आकर डिस्कस करें कि उस दिन उन्होंने क्या अच्छा देखा और क्या अच्छी प्रैक्टिसेस देखी और कहाँ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। इसके लिए वो उस क्लास में से 6 नोटबुक जरूर लेकर जाए, 2 अच्छे बच्चों का, 2 वीक बच्चों का और 2 एवरेज बच्चों का, ताकि एक ओवरऑल एक परसेप्शन बन सके कि कहाँ पर हमारा जो गैप है उसको फिल करने के लिए दोनों मिलकर, यानी कि हेड ऑफ द स्कूल, वाइस प्रिंसिपल ऑन वन साइड एंड द प्राइमरी इंचार्ज एज अ पीयर मेंटर ऑन द अदर साइड, दोनों मिलकर किस तरीके से प्राइमरी एजुकेशन को क्वालिटेटिवली इंप्रूव कर सके। सिलेबस का ट्रैक रखना, कैलेंडर ऑफ इवेंट्स को प्लान करके वो आप तक लेकर आना, सब कुछ आपकी कंसल्टेशन से होगा। आप सहयोग दे मतलब साथ बैठेंगे, कोलैबोरेटिवली डिसाइड करेंगे कि हमने कौन कौन से इवेंट्स कब करने हैं। एक बहुत खास काम जो करना है वो है टू ऑर्गेनाइज स्पेशल असेंबलीज। ये मॉर्निंग असेंबली से अलग है। हर क्लास को 1 महीने में एक बार चांस मिलना चाहिए कि वो अपने किसी थीम पर अपने बच्चों के साथ कुछ प्रेजेंट करें। तो अगर आपके 14 सेक्शंस हैं आपके स्कूल में या 10 सेक्शंस हैं
तो 10 वीक्स, हर वीक पे एक क्लास जो है अपना प्रोग्राम प्रेजेंट करे, लगभग एनुअल डे के तरीके से। तो प्रेयर टाइम से हटकर भी हो सकता है, मौसम अच्छा है तो प्रेयर टाइम में भी हो सकता है, बट इट शुड आई थिंक रन फॉर अबाउट 1 आवर एटलीस्ट। क्लासरूम्स बच्चों के लाइवली, ब्राइट, वेल डेकोरेटेड, थीम बेस्ड डिस्प्लेस हो तो एक लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत ही सहज और अच्छा बन जाता है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि डिटेल्ड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल क्लास का बनना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग से बहुत जल्दी सीख जाते हैं, इसलिए एक एक्टिविटी बेस्ड मॉड्यूल बने, बहुत ज्यादा डायडैक्टिक टेक्स्ट बुक बेस्ड ना रह जाए। बच्चे क्लास के बाहर मूवमेंट के साथ सीखें, एक्टिवली सीखें, तो उनकी लर्निंग बहुत बढ़िया रहती है और वो बहुत जल्दी भी सीख जाते हैं। जैसा हमने पहले कहा कि प्राइमरी इंचार्ज अपनी क्लास ऑब्जर्वेशंस को हेड ऑफ द स्कूल के साथ जरूर शेयर करें ऑन अ डेली बेसिस। स्टूडेंट डायरीज और सैंपल नोटबुक जरूर दिखाएं कि कैसे बच्चे कर रहे हैं, तो हेड ऑफ द स्कूल को, वाइस प्रिंसिपल को एक ओवरऑल परसेप्शन रहेगा कि हमारे स्कूल में किस तरीके से इनोवेटिवली काम किया जा रहा है। आप सब समझते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन फाउंडेशनल एजुकेशन है और हमारे स्कूलों में, सर्वोदय विद्यालय में प्री प्राइमरी एजुकेशन पे भी बहुत फोकस है। तो क्लासेस नर्सरी से शुरू होती हैं अब, और क्लास 12 तक भी स्कूल्स हैं, या क्लास 10 तक हैं, या क्लास 8 तक भी हैं। तो वहां पर प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए और वहां से लेके प्राइमरी एजुकेशन के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, विच आई जस्ट रन थ्रू क्विकली। नर्सरी पहली बार 2017 के सेशन से शुरू हुआ था। हर नर्सरी की क्लास को 1 लाख रुपए का ग्रांट मिला था, जिससे कि उन्होंने एक बहुत सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया और बहुत सारे रिसोर्सेस, राइट फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू सिटिंग मैट्रेसेस टू स्लीपिंग मैट्रेसेस और चौकियां बच्चों के लिए, बहुत सारी चीजें अरेंज हुई थी इसी 1 लाख के ग्रांट से। आज हमारे पास 306 स्कूल्स हैं सर्वोदय विद्यालय जहाँ पे नर्सरी है, और 324 नर्सरी के सेक्शंस भी चल रहे हैं। अब नर्सरी और केजी के लिए एक करिकुलम एससीईआरटी के साथ मिलकर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने एक करिकुलम लागू किया है, और उसी करिकुलम के बेस पे नर्सरी और केजी की टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज की जाती है। करिकुलम के बाद जो पिछले 2 सालों में हमने इसमें और एडवांसमेंट किया, वो ये कि इस करिकुलम के बेस पर डेली लेसन प्लान्स बने हैं असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए, जो कि नर्सरी भी पढ़ाते हैं और केजी भी पढ़ाते हैं। ये जो डेली लेसन प्लान्स हैं, ये पूरे एक्टिविटी बेस्ड हैं और आज की डेट में वो MIS के साइट पर अपलोडेड है। इस बार कोविड क्लोजर की वजह से ये डेली लेसन प्लान्स हमने प्रिंट नहीं कराए। पिछले साल तक प्रिंट करके टीचर्स को पहुंचाया जाता था, और टीचर्स उसी के बेस पे, उसको एक बेसिस बना के, बहुत सारे टीचर्स ने उसके बियॉन्ड भी बहुत एक्टिविटीज करी, पर एक बेसिक लाइनअप मिल गया टीचर्स को कि हमें नर्सरी और केजी की क्लास में उस करिकुलम को किस प्रकार एग्जीक्यूट करना है। इसके साथ साथ आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर कि बच्चों को हमने किट भी दिया है, जिसमें प्ले डो यानी कि चिकनी मिट्टी विद डिफरेंट कलर्स में मोल्ड्स के साथ प्रोवाइड की गई। पहले साल हमने सिर्फ चिकनी मिट्टी दी, अगले साल हमने और इम्प्रूव किया, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हुई, और अब जो प्ले डो जा रहा है वो विद मोल्ड जा रहा है, विद कटर्स जा रहा है, ताकि बच्चे शेप्स वगैरह आसानी से बना सके। इसके साथ साथ नर्सरी के बच्चों के लिए थिक क्रेयॉन्स, जिनको हम ग्रिप क्रेयॉन्स कहते हैं, वो प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं बहुत ही इनके अभी सॉफ्ट स्किल्स हैं, उनके मोटर स्किल्स जो हैं वो भी डेवलप नहीं हुए हैं, ग्रिप स्किल्स उनके डेवलप नहीं हुए हैं, इसलिए हम इनसे लिखवाते नहीं है बिल्कुल भी। राइटिंग इज नॉट डन, लेकिन कुछ भी ड्रॉ करना हो या कुछ भी ट्रेस करना हो तो हम उन्हें ये ग्रिप क्रेयॉन्स देते हैं, मोटे वाले, जिससे कि वो कर लेते हैं। इसके अलावा पोस्टर कलर्स भी दिए जाते हैं। पोस्टर कलर्स हर बच्चे को नहीं मिलते, हर सेक्शन को, हर क्लास को मिलते हैं, और फिर उससे बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा आपके स्कूल में, फिंगर प्रिंटिंग और इस तरह की एक्साइटिंग चीजें छोटे बच्चे
पोस्टर कलर्स के साथ भी करते हैं। क्रेयॉन्स, जो क्लास 1 तक क्रेयॉन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो क्लास 1 के क्रेयॉन्स थोड़े डिफरेंट है। वो नॉर्मल क्रेयॉन्स हैं जो कि एक 6 साल के बच्चे को हम दे सकते हैं। साथ साथ इन सभी बच्चों को एक ड्राइंग फाइल भी दी जाती है एज पार्ट ऑफ द किट। एक बात जो आपने याद रखनी है और ध्यान भी देना है कि पहले और जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे और अब जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उसमें एक माइनर वेरिएशन है। अब क्लासेस 1 और 2 में सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स। क्लासेस 3, 4 एंड 5 में एनवायरमेंटल स्टडीज इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसमें बोथ सोशल साइंस एंड साइंस आर कॉम्प्रिहेंसिवली टॉट, यानी कि अलग से कोई सोशल स्टडीज की कोई किताब नहीं है कम से कम, और सोशल स्टडीज का एग्जामिनेशन भी नहीं होता अलग से। पर हाँ, जो मेरी दिल्ली, हमारा भारत और हमारी दुनिया 3 सपोर्ट सप्लीमेंट्री रीडर्स हैं, जिससे प्रोजेक्ट फाइल के रूप में उसे यूज किया जा सकता है और सब्जेक्ट एनरिचमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। I would also like to add here कि मेरी दिल्ली, हमारा भारत और हमारी दुनिया से इवैल्यूएशन नहीं होता है, क्वेश्चंस नहीं सेट होते हैं। ये सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए है और एनरिचमेंट के रूप में इसे यूज करना होता है। सपोर्ट मटेरियल की बात करें तो प्राइमरी में बहुत सारा सपोर्ट मटेरियल बच्चों तक पहुंचता है। प्री प्राइमरी का तो मैंने आपको बताया कि किट जाती है, प्ले डो, क्रेयॉन्स एंड ड्राइंग फाइल्स, पोस्टर कलर्स। इसके अलावा प्री प्राइमरी के लिए 2 वर्कबुक्स जाती हैं जिनका नाम है फुलवारी। ये हमारे करिकुलम और डेली लेसन प्लान्स के साथ लिंक्ड है। फुलवारी 1 फॉर नर्सरी एंड फुलवारी 2 फॉर केजी। क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक सभी बच्चों को वर्कबुक्स मिलते हैं जो कि टेक्स्ट बुक लिंक्ड है, सिलेबस पर बेस्ड है और लर्निंग आउटकम्स के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। क्लास 1 और 2 में आपको मिलेंगे वर्कबुक्स हिंदी में, इंग्लिश में और मैथ्स में। मैथ्स की वर्कबुक्स आपको हिंदी मीडियम में भी मिलेंगी और इंग्लिश मीडियम में भी। दिस इज फॉर क्लासेस 1 एंड 2। और आप सबको पता ही होगा कि आपके स्कूल में अब तक ये वर्कबुक्स आ गई होंगी क्योंकि जोनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर ये सारी पहुंच गई है और शायद हमने गाइडलाइंस भी इश्यू कर दी है कि आप वहां से ले आए और जल्द से जल्द बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। So I'm hoping that all of you have already distributed the workbooks to your children. ये इसलिए भी जरूरी है कि अब जो हम वर्कशीट्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन शेयर कर रहे हैं बच्चों के साथ क्लोजर के दौरान, उसमें वर्कबुक्स की यूसेज का लिंक डलना शुरू हो गया है। खास तौर पर अब जो छुट्टियां आएंगी, विंटर वेकेशन, उसमें वर्कबुक से रिलेटेड या वर्कबुक से वर्कशीट्स बच्चों को करनी होगी। इसलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इन्हीं 2 दिनों में आप, अगर आपके स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई हैं, तो आप अपने जोनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से मंगवा कर उसे एकदम जल्दी प्रोटोकॉल कैब कोविड बिहेवियर के तहत जो भी प्रोटोकॉल मेंटेन करना है वो मेंटेन करते हुए इन बुक्स को प्लीज बांट दीजिएगा। क्लासेस 3 to 5 की जो वर्कबुक्स हैं उनकी अगर मैं खासियत बताऊं तो बच्चों को 3 वर्कबुक्स मिल रही हैं, इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स, जो कि एक ही होंगी फॉर ऑल। वो इसलिए इंग्लिश और हिंदी कॉमन है। और मैथ्स की जो वर्कबुक है वो बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी मीडियम का बच्चा भी और इंग्लिश मीडियम का बच्चा दोनों ही उसी वर्कबुक के साथ काम करेंगे। अब चौथा सब्जेक्ट है ईवीएस। ईवीएस आपको हिंदी मीडियम में अलग और इंग्लिश मीडियम में अलग मिलेगा। ये भी जोनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से अगर आपने अभी तक कलेक्ट नहीं किए तो माय रिक्वेस्ट गोज टू यू कि आप उसे इमीडिएटली आज में कलेक्ट करवा लें, आप अपने स्कूल में बता दें और फिर छुट्टियों से पहले तक हर बच्चे के पास पहुंच जानी चाहिए, बिकॉज हॉलीडेज में हम इन्हें जो वर्कशीट्स होंगी वो वर्कबुक के साथ सिंक्रोनाइज्ड होंगी। कुछ झलक आपके हमारे वर्कबुक्स की। इंग्लिश क्लास 1 की एक टेक्स्ट बुक कवर है, हिंदी अभ्यास पुस्तिका है। क्लास 1 और 2 की वर्कशीट्स जो वर्कबुक्स हैं वो SCERT ने बनाई थी 2017 में। लेकिन जो क्लास 3 to 5 की वर्कबुक्स हैं
वो हमने प्राइमरी ब्रांच में ही बनाई और उसे प्रिंट करवाई हैं, एंड दे वर मेड इन 2018-19। जो मैंने आपको बताया था कि वर्कबुक्स बहुत स्पेशल है, मैथमेटिक्स बाइलिंगुअल है और इसमें स्टोरी बेस्ड सम्स है, यानी कि कन्वेंशनल मैथमेटिक्स से हटकर। कन्वेंशनल मैथमेटिक्स में आप 5 + 5 = 10 या मल्टीप्लाई द फॉलोइंग या निम्नलिखित को गुना कीजिए, प्रोडक्ट बताइए, ऐसे बड़े स्टेट क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन आप अगर मैथ्स की बुक को देखें तो उसमें बच्चे को रियल लाइफ के साथ और मैथ्स को जोड़ दिया गया है। बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है जब वो अपने रियल लाइफ में अपने इर्द गिर्द उसके अपने एक्सपीरियंस के अनुसार वो एक्सपीरियंस करे एक सिचुएशन को और उसमें मैथ्स को देखे और मैथ्स को समझे और मैथ्स को यूज करे। So I'm sure all of you would like to go through this workbook and then come back to me if you have a better suggestion or more feedback. Environmental studies यानी कि EVS की जो वर्कबुक्स है उसमें सारे जो लेसन्स हैं उनकी माइंड मैपिंग की गई है और उन माइंड मैपिंग के बाद सब कुछ एक्टिविटी रिलेटेड लर्निंग है। साथ साथ इसमें फन एक्सपेरिमेंट्स, वैल्यू पेजेस और एक्चुअल सिचुएशंस की सिमुलेशंस करके बच्चों तक हम पहुंचे हैं, सिलेबस को लेकर, लर्निंग आउटकम्स को लेकर और टेक्स्ट बुक को लेकर। इंग्लिश एंड हिंदी की वर्कबुक्स एक्टिविटी बेस्ड हैं और सभी लर्निंग आउटकम्स के साथ जुड़ी हुई हैं। एक और इनिशिएटिव जो प्राइमरी ब्रांच ने किया है वो ये है कि अगर SCERT ने जो लर्निंग आउटकम स्पेसिफाई किए हैं, आप सभी जानते होंगे कि क्लासेस 1 से लेकर क्लास 8 तक की जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसको नोटिफाई किया है SCERT ने, क्योंकि SCERT ही 8वीं तक का एकेडमिक अथॉरिटी है। लेकिन क्या हमारे बच्चे उस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर पा रहे हैं? आर दे अचीविंग दोस? ये चीज देखने के लिए हमने एक रिकॉर्ड रजिस्टर प्लान किया था जिसका नाम है लर्निंग आउटकम रिकॉर्ड रजिस्टर, जो सब्जेक्ट वाइज है। पहले साल तो आई मस्ट कंग्रेचुलेट ऑल द असिस्टेंट टीचर्स जिन्होंने हाथ से ही जो हमने उनको प्रोफोमा दिया या फॉर्मेट दिया उसको उन्होंने हाथ से बनाया, एंड दैट वाज अ मेजर एफर्ट, क्योंकि हर टीचर को अपने 40 बच्चों के 3 और 4 लर्निंग रिकॉर्ड रजिस्टर्स बनाने पड़ी थी हाथ से। बट नेक्स्ट ईयर से हमने उन्हें प्रिंट करना शुरू किया, बट अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम बिकॉज ऑफ द क्लोजर हमने इसे इस बार टाइप में प्रिंट नहीं कराया। वी हैव बैक। प्राइमरी का बच्चा, प्री प्राइमरी का खास तौर पे जो नर्सरी से आता है, उसके लिए स्कूल एक अलग दुनिया है। यहाँ पर उसे कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जो उसने कभी पहले देखी नहीं, क्योंकि इससे पहले तक तो 3 साल का बच्चा अपनी मदर के साथ, पेरेंट के साथ, ग्रैंड पेरेंट के साथ, मैक्सिमम सिबलिंग्स के साथ, ये इमीडिएट कम्युनिटी के साथ लोगों को जानता था। पर यहाँ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत सारे स्ट्रेंज लोग, बहुत सारे स्ट्रेंज अडल्ट्स, बहुत सारी भीड़ वाले बच्चे, एंड बच्चा शायद लॉस्ट हो जाता है। तो सबसे पहला जो हमारा सोशलाइजेशन का पहला स्टेप है वो ये कि बच्चा खुद को जाने और अपने एनवायरनमेंट को पहचाने। इसके लिए प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए एक प्रोजेक्ट फाइल है जिसका नाम है मुझे जानो और पहचानो। मोटिवेशन तो आप समझते ही हैं, हम भी जानते हैं, हम भी मोटिवेशन के बगैर बहुत आगे नहीं चल पाते हैं। तो हमारे छोटे बच्चे तो मोटिवेशन से बहुत मोटिवेट होते हैं। तो उसके लिए हमने कुछ अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स बनाई हैं और छापी हैं, which has been withheld this year unfortunately again because of COVID. लेकिन पिछले साल तक हर बच्चे को 8 सर्टिफिकेट्स किसी भी रूप में, किसी भी पूरे साल में कैसी भी हो, बच्चे को अवार्ड करनी है। उसके लिए 2 तरह के सर्टिफिकेट्स हमने बनाए, कुछ जेनेरिक और कुछ स्पेसिफिक। जेनेरिक यानी कि जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है यू आर अ स्टार, या फिर आगे चले तो देखिए कि वेल डन। लेकिन कुछ स्पेसिफिक भी बने हमारे, जैसे अगर बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है तो उसको हमने कहा मैथ मैजिशियन, या टेरिफिक स्टोरी टेलर, या पॉपुलर क्लासमेट, इस तरीके की कुछ बने हुई हैं, या लोकप्रिय सहपाठी यानी कि पॉपुलर क्लासमेट। अगर बच्चे को पूरे साल में 8 सर्टिफिकेट्स किसी ना किसी रूप में आपने देने हैं। अगेन दिस ईयर वी हैव नॉट
printed them, but next year we are hoping to print them once things are on track and all our children come back to school. इन सर्टिफिकेट्स के अलावा एक बर्थडे कार्ड हर बच्चे के लिए. बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे डिफिकल्ट बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ शायद घर पे बर्थडे शायद ना मनाया जाता हो, तो भी अगर स्कूल में मनाया जाए तो बच्चा तो पूरा दिन, यू मेड द डे फॉर द चाइल्ड बिकॉज हिज बर्थडे और हर बर्थडे इज अ डे ऑफ सेलिब्रेशन फॉर द स्कूल. So every child also gets a birthday card. I would now like to take you towards the organizations that are collaborating with us. हाल फिलहाल हमारे साथ 3 NGOs काम कर रहे हैं. रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट जो बच्चों की रीडिंग एबिलिटीज और लाइब्रेरी से कनेक्टेड है, जोड़ो ज्ञान जो मैथमेटिक्स का इंटरवेंशन करते हैं, और आवान ट्रस्ट जो प्री प्राइमरी में टीचर्स के लिए मेंटरिंग करते हैं उनके क्लासरूम स्किल्स और इंटीग्रेटेड स्किल्स को डेवलप कराने के लिए. स्टार्टिंग विद जोड़ो ज्ञान. 2015 में जोड़ो ज्ञान ने सबसे पहले DOE के साथ काम करना शुरू किया, और जो बेसिक फोकस है वो ये है कि बच्चे मैथमेटिक्स से डरे नहीं. तो फियर ऑफ मैथमेटिक्स को हटाना है और मैथ्स को बच्चों के रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ जोड़ना है. सबसे पहले 42 स्कूलों में ये पायलट किया गया था. उसके बाद 18-19 से ही ये सभी सर्वोदय विद्यालय में सभी क्लासेस में ये लागू है. टीचर्स की ट्रेनिंग जोड़ो ज्ञान के प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि इनकी मेथोडोलॉजी में रियल लाइफ के सिचुएशन के साथ जोड़ने की वजह से कुछ ऐसे हैक्स और कुछ ऐसे ट्रिक्स और कुछ ऐसी मेथोडोलॉजी है जो टीचर्स को यूज करनी होती है क्लास में. यहाँ आप देख रहे हैं कि जोड़ो ज्ञान के रंगोमेट्री से छोटे बच्चे किस तरीके से फॉर्म्स एंड शेप्स बना के सीख पा रहे हैं. ये भी एक इंटरवेंशन जोड़ो ज्ञान से जुड़ा हुआ है, गणित माला, जिससे बच्चे न केवल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बट टू सम एक्सटेंट मल्टीप्लिकेशन भी सीख लेते हैं एंड डिवीजन भी कर लेते हैं. सो इट इज अ ग्रेट टूल. और इस तरीके से लर्न करने से जब बच्चा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेता है तो वी हैव सीन दैट द लर्निंग इज मच हायर इन क्वालिटी एंड रिटेंशन. ये इस पिक्चर में आप देखेंगे कि बच्चे कुछ नाप रहे हैं. ये किसी फॉर्मल स्केल या इंच टेप से नहीं, इन्होंने खुद का अपना मापदंड बनाया है एक पेपर से ही. इस तरीके से इनफॉर्मल तरीके से नापना शुरू कराते हैं बच्चों को कि 1 हाथ, 2 हाथ, 1 पैर, 2 पैर की लंबाई, एंड धीरे धीरे द चाइल्ड लर्न्स टू यूज अ स्केल और अ रूलर. तो ग्रेजुअल लर्निंग of maths through very innovative techniques is done in this methodology. I will now take you to Room to Read India Trust Literacy Program. 2017 से लेके मार्च 2020 तक इन्होंने 2000 सर्वोदय विद्यालय में इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी स्थापित करी और 2021 तक ये एक्सटेंड हुई थी मार्च तक. इस बार भी डिस्पाइट कोविड क्लोजर रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट ने अपनी डेजिग्नेटेड बुक्स 100 सर्वोदय विद्यालय में पहुंचाई हैं और वहां पर ये नेक्स्ट ईयर जैसे ही बच्चे आ जाएंगे दिस विल बी यूज्ड. सॉरी. सो एक पर्पस है कि अलग से लाइब्रेरी अगर बनती है प्राइमरी के बच्चों के लिए एक रीडिंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए, और जो टीचर्स है उनकी भी कोचिंग कराई गई. और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है रूम टू रीड प्रोग्राम में, वो ये है कि इन्होंने बच्चों को ही ट्रेन किया कि बच्चे ही अपनी लाइब्रेरी को मैनेज करें, यानी कि इश्यू, रिटर्न, ये सब बच्चे खुद करने लग गए. एंड वी हैड वेरी एनकरेजिंग रिपोर्ट्स ऑफ हाउ चिल्ड्रन लव टू बी इन दिस रूम टू रीड लाइब्रेरी. ये एक झलक है आपके रूम टू रीड लाइब्रेरी की. 200 सर्वोदय विद्यालय में बना, बट 2020-21 में इनका हमारे साथ MOU is going to get completed, but ये लाइब्रेरीज रहेंगी स्कूलों में. तो आपके अगर स्कूल में अगर ये रूम टू रीड लाइब्रेरी है तो आई एम श्योर यू कैन पुट इट टू वेरी गुड यूज. ये बच्चे जो रूम टू रीड लाइब्रेरी में कुछ एक्टिविटी करते हुए कुछ डेटा, बिकॉज ये टीचर की ट्रेनिंग, किस तरीके से बच्चों को रीडिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाए, रीडिंग को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, रीडिंग को मीनिंगफुल बनाया जाए. कई बार आपने देखा होगा बच्चे पढ़ लेते हैं
बट कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर पाते। तो पढ़ना इज नॉट इनफ, टू बी एबल टू एसोसिएट इट विद सम मीनिंग एंड देन क्रिएट समथिंग मोर ऑन देयर ओन, ये पर्पस रहता है रीडिंग प्रोग्राम का। So this is again extension of the program that was extended in 2019. I will now move to Awan Trust, जो प्री प्राइमरी के साथ काम कर रहा है। बेसिकली ये टीचर्स की मेंटरिंग करते हैं, टीचर्स के स्किल्स को बढ़ाते हैं, टीचर्स के स्किल्स को कंसोलिडेट करते हैं थ्रू देयर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। फिर स्कूलों में विजिट होता है, स्कूलों में प्राइमरी ब्रांच में विजिट करती है टू सी द एफिकेसी ऑफ द प्रोग्राम। तो बच्चा अगर टीचर की कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती रहे तो चिल्ड्रन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट, एंड आवान हैज बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब विद दिस सेक्टर। करिकुलम बनाने से लेकर वर्कशीट्स बनाने तक वो हमारे साथ कोलैबोरेट करते हैं और इनका रोल बहुत अहम है। दिस इज सम डेटा which about how children have shown improvement. I now come to the school library. अगर आप सर्वोदय विद्यालय में हैं और आपने प्राइमरी का राउंड लिया है तो आपको पता ही होगा कि हर प्राइमरी सेक्शन में एक क्लासरूम लाइब्रेरी है। 2016-17 में बजट प्रोविजन किया गया था। पहली बार हमारे ऑनरेबल जो डिप्टी सीएम है और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, उनकी तरफ से ये I would say it was his brainchild कि हर प्राइमरी के सेक्शन में एक क्लासरूम लाइब्रेरी होनी चाहिए और वो लाइब्रेरी बच्चों के ओपन एक्सेस में होनी चाहिए। तो प्रत्येक प्राइमरी सेक्शन को 2017 से पर ईयर 10,000 रुपीज का एलोकेशन हुआ है और इस 10,000 रुपीज से प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए किताबें खरीदी गई हैं थ्रू द बुक फेयर। So you're all aware of the mega book fair जो पिछले 3 साल से हो रहा है, जहां पर आप लोग आए हैं और अपने स्कूल के लिए आपने किताबें सिलेक्ट करी हैं। So it is through the same book fair कि प्राइमरी के क्लासेस में भी क्लासरूम लाइब्रेरी के लिए किताबें आई हैं। Some very, I would say, minute some data for you. 2019 में 6.5 lakhs books were provided to all the Sarvodaya Vidyalayas put together. An amount of 4.2 crores was spent, and on an average 150 more books reached every class. पिछले सालों में भी आया और फिर add on another 150 भी आया. So if you can see a comparative here on your screen, how we have moved from 4.17 crores in 2017-18 to 4.5 crores in 2019-20. This year, again, because of the closure due to the pandemic situation, हम इस बार मेगा बुक फेयर नहीं करा पाए हैं, लेकिन इस बार हमने सभी स्कूल्स के लिए गाइडलाइंस इश्यू की हैं कि अपने स्कूल में अपने बड़ी क्लास के बच्चों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन में सहायक किताबें खरीदें। हाल ही में लाइब्रेरी ब्रांच की तरफ से एक सर्कुलर निकला है जिसमें आपको वो बुक्स की लिस्ट भी है, जो एक गाइडलाइन लिस्ट है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कौन सी किताबें हो सकती हैं। उसके अलावा ओवर एंड अबव भी आप सबसे रिक्वेस्ट की गई है कि आप 2021 में बच्चों के, आपके स्कूल के बच्चों के लोकल नीड्स के हिसाब से आप इस साल अपने पीडब्ल्यूएफ या एसएमसी फंड से 10,000 रुपए की किताबें खरीद सकते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूज हो। साथ ही में ये रिक्वेस्ट भी किया गया है कि आप अपनी मेन स्कूल लाइब्रेरी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बिल्कुल अलग सेक्शन बनाएं, यानी कि जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उसे मालूम होगा कि हमारी लाइब्रेरी में कहाँ पर ये किताबें रेफरेंस के लिए मिल सकेंगी। So I'm sure you will. So this I'm transcending into library branch because ये दोनों linked हैं branches और मैं library की ही बात कर रही हूँ, तो I'm trying to convey that to you. यहीं पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगी और वो ये कि पिछले साल 2019-20 में जो आपने मेगा बुक फेयर से किताबें खरीदी उनके बिल भी लगाए होंगे, लेकिन लॉकडाउन के चलते बहुत स्कूलों के बिल्स ऑब्जेक्शन में आ गए या ऑब्जेक्शन रिमूव नहीं हुआ या लॉकडाउन के ड्यूरिंग वो क्लियर नहीं हो पाए।
तो बहुत स्कूलों से भी हमारे पास रिक्वेस्ट आए हैं और बहुत पब्लिशर से भी हमारे पास रिक्वेस्ट आए हैं कि इस बार उनके बिल्स बहुत बड़ी तादाद में और बड़े अमाउंट्स में पेंडिंग है। सो माय रिक्वेस्ट टू यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म इज कि आप प्लीज अपने स्कूल में चेक करें कि क्या आपके स्कूल में लाइब्रेरी के किसी भी पब्लिशर का कोई बिल पेंडिंग है, तो आप उसकी फाइल बनाकर, बिल्स लगाकर, सैंक्शन ऑर्डर्स लगाकर जो पिछली थी, और अपने डीडी जोन से काउंटर साइन कराकर ही हमें दे दीजिएगा। फाइल को बहुत लंबे रास्ते घुमाने की जरूरत नहीं है, आपके डीडी जोन काउंटर साइन कर दें, हमारे पास आ जाए लाइब्रेरी ब्रांच में, तो हम उतना फंड हम मांगेंगे प्लानिंग ब्रांच से, और ये आपके जो पब्लिशर्स हैं उनके बिल्स क्लियर हो जाने चाहिए। सो अभी तक मैंने आपसे 2 रिक्वेस्ट करी है। पहला रिक्वेस्ट था आपके लिए कि आप जोनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से अपने स्कूल के लिए, सर्वोदय विद्यालय के स्कूल्स के लिए, पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास की वर्कबुक्स को अगर कलेक्ट नहीं किया है तो कलेक्ट करा लीजिए, कलेक्ट हो गए हैं तो डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए बिफोर द विंटर वेकेशन बिगिंस। सेकेंड रिक्वेस्ट है कि आप अपने डीडी जोन से काउंटर साइन कराकर लाइब्रेरी के पेंडिंग बिल्स अगर पिछले साल के हैं तो वो हमारे पास पहुंचा दीजिए ताकि हम फंड एलोकेशन करा सके। एक और चीज जो हमने कही थी कि आप अपने डीडी जोन से ही काउंटर साइन कराकर हमारे प्राइमरी ब्रांच में फाइल्स भेज सकते हैं, जहां पर आप हमें ये बताएंगे कि आपके स्कूल के जो सैंक्शनड असिस्टेंट टीचर्स की पोस्ट है वो सेक्शंस +1 होनी चाहिए। अगर +1 नहीं है तो आप प्लीज फाइल बनाकर डीडी जोन से काउंटर साइन कराकर प्राइमरी ब्रांच में दे दीजिएगा। I will definitely take it up to ensure that by the time schools reopen, we have suitable strength in the school to implement all our policies. ये क्लासरूम लाइब्रेरीज की हम बात कर रहे थे, कई स्कूलों में देखा गया कि इसे ट्रंक में बंद किया हुआ है या अलमारी में बंद किया है, जिसके कई जेन्युइन कारण हमें बताए गए, जैसे कि ये जो क्लास है प्राइमरी का, इसको डबल शिफ्टेड स्कूल में शाम को यहाँ पर 6ठी क्लास आकर बैठती है या कोई और रीजन है, तो ये महसूस किया गया कि हम लोग किसी प्रकार कोई इनोवेशन, इस तरीके से कोई इनिशिएटिव ले जिससे कि हम रोज बच्चों तक ये फ्री एक्सेस में किताबों को रख सके। पर्पस ही डिफीट हो जाएगा अगर बच्चा इंटरेस्ट अपनी सामने किताबों को देखकर मर्जी से किताब ना उठा ले और उसको देखना शुरू ना कर दे। फोर्स करके अगर हम बच्चे को कहते हैं ये किताब पढ़ो और वो अपने ही रैक में से अपनी मर्जी से किताब खींचकर पढ़ता है, तो आप समझ सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस। My request to all of you to ensure that वो रैक्स, ओपन रैक्स में बच्चों के पास ओपन एक्सेस में किताबें हो जरूर। अपने स्कूल के लाइब्रेरियन से जरूर रिक्वेस्ट कीजिएगा कि एक्सेशन रजिस्टर मेंटेन करना और जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट के टेक्निक्स हैं उसके लिए असिस्टेंट टीचर्स को जरूर कम से कम 1 दिन की ट्रेनिंग दें और बीच बीच में उनको चेक भी करे और हेल्प भी करे, ताकि मैनेजमेंट ऑफ दीज बुक्स, आफ्टर ऑल रिकॉर्ड कीपिंग इज सो इम्पोर्टेंट। सो इसलिए उसमें ये मंथली रिव्यू हो जाना चाहिए ताकि बुक्स इश्यू कितनी है, लॉस है तो क्यों है, ये सारी डिटेल्स लाइब्रेरियन आपके असिस्टेंट टीचर्स को ट्रेन कर पाएंगे। आप सभी मेरे साथ सहमत होंगे कि कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट किसी भी लेवल में बहुत जरूरी है। जैसे कि आज ये प्लेटफॉर्म भी सीपीडी का ही प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम चाह रहे हैं कि स्किल्स जो है हमारे इंप्रूव हो, फाइनर ट्यून हो जाए, होन हो जाए। सो सेम फॉर आवर प्राइमरी टीचर्स ऑल्सो। प्राइमरी टीचर्स की ट्रेनिंग का जो बेसिक रोल है वो है एससीईआरटी का, लेकिन कभी कभी हम लोग प्राइमरी ब्रांच से भी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे देते हैं अगर हमें महसूस होता है कि इसकी बहुत आवश्यकता है और तुरंत है। लेकिन 2018 के वेकेशन टाइम में, समर वेकेशन में, एक बहुत ही डिटेल ट्रेनिंग, बहुत ही इंटेंसिव इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग कराई थी प्राइमरी ब्रांच के थ्रू, जिसमें हमने 11 डिसिप्लिन्स लिए थे और सब्जेक्ट्स को हमने सीधा सब्जेक्ट की तरह ना पढ़ाकर आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, गेम्स के साथ जोड़ दिया था। तो अगर आप अपने असिस्टेंट टीचर से बात करें जिन्होंने उस 2018 के समर वेकेशन में पार्टिसिपेट किया था, तो आपको एक इंसाइट मिल जाएगा कि आप आगे उसको कैसे लेकर चल सकते हैं और कैसे आप अपने ही इनिशिएटिव्स डिवाइस कर सकते हैं।
So this is just a lineup of the disciplines that were taken in that training and how we can through these again incorporate करके एक मल्टी डिसिप्लिन पैकेज या क्रॉस डिसिप्लिन पैकेज बना ले. इस इन सर्विस ट्रेनिंग की कुछ झलक आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर. यहां पर आप देखेंगे कि फोरग्राउंड में लिखा हुआ है अंडर और पीछे सब लोग कुछ एक्सरसाइज करते हुए दिख रहे हैं. तो एक्चुअली preposition under is being taught through games. फिजिकल मूवमेंट के साथ TPR which is called total physical response. TPR के साथ हम कोई भी लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, यहां तक कि मैथ्स भी पढ़ा सकते हैं. 2020 जनवरी में हमारे डिपार्टमेंट में 1257 नए असिस्टेंट टीचर्स आए थे और इनके लिए हमें लगा कि बहुत एक इंडक्शन बहुत जरूरी है और अर्जेंट लगा. तो प्राइमरी ब्रांच ने ही इनकी 1-2 दिन की ट्रेनिंग करी जहां पर जितनी सारी इनिशिएटिव्स प्राइमरी में हुई है वो तो बताई थी. फोकस ये था कि हम इन्हें लो कॉस्ट TLM बनाने के लिए मदद करें. तो उसके साथ हमने बच्चों ने यानी कि जो न्यूली अपॉइंटेड असिस्टेंट टीचर्स थे उन्होंने बहुत सुंदर TLMs बनाए जिससे कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, EVS सभी कुछ पढ़ाया जा सके. साथ साथ हैप्पीनेस करिकुलम के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई थी. और एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर था वो है स्टोरी टेलिंग. स्टोरी टेलिंग के थ्रू कैसे बच्चों तक आप सभी सब्जेक्ट लेकर जा सकते हैं ये और क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं लाइब्रेरी का, ये सब चीजें उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कवर की गई थी. सो इफ यू कैन हैव अ टॉक विथ योर असिस्टेंट टीचर्स या आपके स्कूल में नए असिस्टेंट टीचर्स हों जो पिछले साल ही आए हैं तो प्लीज डू हैव अ टॉक विद देम and see where how you can take this forward. यहां पर ये बताने का मकसद ही यही है कि आप इसे फॉरवर्ड कैसे लेके जा सके. Some glimpses of that orientation. कुछ TLMs हैं. You can see how excited and enthusiastic these teachers are. कहते हैं ना catch them young. मैं उसको थोड़ा सा चेंज करके कह सकती हूँ catch them new. तो नए इंडक्टेड टीचर्स मोटिवेटेड होते हैं, उनमें अभी भी जेस्ट होता है टू लर्न मोर. सो आई थिंक दे आर द बेस्ट वंस टू यूज और टू ब्रिंग इनटू द सिस्टम टू रोल आउट इनिशिएटिव्स ऑफ ऑल काइंड्स. दिस इज अगेन सम ग्लिम्पसेस ऑफ द प्रोग्राम. प्राइमरी में भी हैप्पीनेस करिकुलम है. You can see that classes 1 और 2 तक mindfulness किया जाता है, ध्यान करना. और 3 to 5 में इसके साथ साथ स्टोरी बिल्डिंग, स्टोरी टेलिंग एंड एक्सप्रेशन डे. हमारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे इंट्रोवर्टेड होते हैं. दे डू नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स, या फियर फैक्टर है या सोचते हैं कि सब लोग हंसेंगे. इस तरीके के जो फीलिंग उसकी वजह से बच्चा एक्सप्रेस करने में डरता है, हेसिटेट करता है. एज ए रिजल्ट वो अपना एक्सप्रेसिव जो अभिव्यक्त करने की क्षमता है उसको डेवलप ही नहीं कर पाता है. तो हैप्पीनेस करिकुलम ना केवल वैल्यूज जैसे ग्रैटिट्यूड, पेशेंस, टॉलरेंस इन सबको वीव करता हुआ बच्चों को आगे ले जाता है, बल्कि आई फील कैरेक्टर बिल्डिंग में इज डिस्प्लेइंग अ वेरी गुड रोल. 2018 में हैप्पीनेस करिकुलम लॉन्च हुआ था एंड आई थिंक the results are very encouraging. So like I told you, from nursery to class 2, it is mindfulness and mindfulness stories and activities for classes 1 and 2. Mindfulness for classes 3 to 5 and also activities, story and discussion. Saturday ko expression day, which again, like we just discussed, how important it is to express oneself. जो हमें आउटकम्स दिख रहे हैं, बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस का बढ़ना, सेल्फ एस्टीम का बढ़ना, बेटर कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन स्किल्स का होना, अवेयरनेस अबाउट सेल्फ, अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट, अवेयरनेस अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये सब चीजें वी हैव बीन अचीविंग. जो टीचर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम में यू कैन सी सम हैप्पीनेस क्लासेस. I take you now to a very important part of classroom
मैनेजमेंट विच इज अ टाइम टेबल। ये महसूस किया गया कि नर्सरी टू क्लास 2 में इनफॉर्मल एंड फॉर्मल एजुकेशन दोनों ही हैं, लेकिन फिर भी एक क्राफ्टेड टाइम टेबल की कमी महसूस की गई। बहुत स्कूल्स हमने विजिट किए जहाँ पे टीचर वाज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स बट देयर वाज नो स्ट्रक्चर। तो एक बेसिक टाइम टेबल, स्टैंडर्डाइज टाइम टेबल बनाया गया क्लासेस 1 एंड 2 के लिए और नर्सरी केजी के लिए, with the guidelines कि this is just a basic foundation. If you as the head of the school or as the vice principal of the school can think of more innovations या adding more elements to this और इसकी true spirit को maintain करते हुए you can add much more, then please feel free. This is only a basic foundation for you to work on. I would now like to share with you a very I would say a crucial program that is run by the primary branch. We call it the Master Trainer Program. अभी Master Trainer Program is in the informal realm. यानी कि किस तरीके से आप देखेंगे स्क्रीन पर कि 449 जो सर्वोदय विद्यालय हैं, उन सबके प्राइमरी इंचार्जेस हमारे प्राइमरी ब्रांच के साथ सीधा जुड़े हुए हैं। टू स्टार्ट विथ हमारे पास 15 डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोऑर्डिनेटर्स हैं और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोऑर्डिनेटर्स के पास कुछ स्कूल्स हैं, 5-6 ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। सो वो डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लेते हैं, जोन को कवर कर लेते हैं, यानी कि जोन वाइज है, अगर एक किसी डिस्ट्रिक्ट में 3 जोन है तो उस डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर के पास 3 जोन से ही रिप्रेजेंटेशन है। ये मास्टर ट्रेनर्स 85 मास्टर ट्रेनर्स आगे स्कूलों के साथ जुड़े हुए हैं। हर मास्टर ट्रेनर के पास 5 से 6 स्कूल मेंटी हैं, यानी कि अगर हम एवरी स्कूल टीचर, प्राइमरी टीचर तक आज अभी पहुंचना चाहते हैं तो हम इस प्रोग्राम का, इस चेन का यूज करते हैं। हम अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोऑर्डिनेटर्स को इन्फॉर्म करते हैं, वो आगे मास्टर ट्रेनर्स को, वो आगे प्राइमरी इंचार्जेस को स्कूलों के, और प्राइमरी इंचार्जेस अपने सारे टीचर्स को। एंड ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक क्लोजर हमने ये चेन यूज किया है फॉर टेकिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन स्ट्रेट टू द स्टूडेंट्स। स्टोरी टाइम लेकर गए हैं हमने, स्टोरी कैप्सूल्स with video, with audio. Through this, in 1 hour, we are able to reach all the students of all the schools. Apart from this, the master trainers and the district level key coordinators जो हैं, वो हैंड होल्डिंग करते हैं अपने अपने स्कूलों के प्राइमरी इंचार्जेस की, कि अगर उनको कुछ हिच नजर आ रहा है या किसी इम्प्लीमेंटेशन में उन्हें कुछ प्रॉब्लम आ रही है या समझने में कमी हो रही है, तो वी आर हियर टू हेल्प एवरी प्राइमरी इंचार्ज and the HOS and the vice principal so that all the policies can be implemented in a very smooth way. इस मास्टर ट्रेनर प्रोग्राम का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो है कि जितने बेस्ट प्रैक्टिसेस, हर स्कूल के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको हम सारे स्कूलों में शेयर करें। इसके लिए लास्ट ईयर हमने शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस के एग्जीबिशंस लगाए थे। एक एग्जीबिशन लगा था नवंबर के महीने में जोन 1 से लेके 13 तक के लिए, और अगला लगा था दिसंबर में जोन 14 से 29 के लिए। इस एग्जीबिशन में हर मास्टर ट्रेनर ने अपने मेंटी स्कूल्स में से एक स्कूल में एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया और वहां पे उनसे जुड़े 6-7 स्कूल जो भी हैं वहां से सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस उस वेन्यू में आए। एज अ रिजल्ट साइमल्टेनियसली 85 वेन्यूज में 449 स्कूल्स ने एक साथ पार्टिसिपेट किया, एक साथ शोकेस किया, और इतना मोटिवेटिंग रहा ये कि इसका फॉलो अप हम आज तक फील कर रहे हैं। खास तौर पर अभी जब वर्कशीट्स बन रही है और जा रही है और जो बच्चों से निकल कर आ रहा है वापस, इट इज रियली हार्ट वार्मिंग। There are some glimpses of the best practices. TLMs बहुत इनोवेटिव TLMs बनकर आए, सिंपल कागज पेंसिल से बने हुए, जो अवेलेबल मटेरियल है उससे बना हुआ, एंड वेरी इफेक्टिव TLMs for all the subjects.
I'm now sharing the screen sees some pictures of report cards. Report cards जो classes 3 to 5 के लिए तो formal हैं. आप अगर उसमें देखेंगे कि बच्चों के लिए, you know, here on the cover page, of course, it is just the attendance and the details of the child, but backside we see is all learning outcome based. I will now also like to take you to another very innovative kind of report card that we did just for a year. नर्सरी और प्राइमरी केजी के रिपोर्ट कार्ड्स तब नहीं छपे थे, तो बहुत ही एक स्माइली वाला रिपोर्ट कार्ड बना था, बट दैट लास्टेड ओनली फॉर अ ईयर. बट आप भी एक अपने स्कूल में इनफॉर्मल तरीके से ऐसा कर सकते हैं. अब हमें आगे का रास्ता और बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं जो बिल्कुल थ्रेशोल्ड पर हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे. सबसे पहले तो फिजिकल एजुकेशन टीचर ओनली फॉर प्राइमरी 423 पोस्ट जो है वो क्रिएट हो चुकी हैं, और इस पर अब काम चल रहा है कि इनके रिक्रूटमेंट रूल्स बन रहे हैं. एंड आई थिंक in some time every school, every Sarvodaya Vidyalaya will have a physical education teacher exclusively for primary. उसी तरीके से एक्सक्लूसिव स्पेशल एजुकेशन एडुकेटर जो है वो भी हर सर्वोदय विद्यालय में बहुत जल्द पहुंच जाएंगे, ताकि प्राइमरी के जो लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, उसको वो फोकस रूप से हैंडल कर पाएंगे जो स्पेशल एडुकेटर होंगे. फरवरी 2020 में एक कार्यक्रम शुरू हुआ था निपुण, जो हमने केजी के लिए रोल आउट किया था. 18 फरवरी को ये लागू हुआ, इनिशिएट हुआ, जिसमें कि 3 फेजेस थे. रूब्रिक बना, बकायदा टूल्स बने, केजी के टीचर्स की ट्रेनिंग भी हुई कि किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों को असेस करना है और उनके लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई करना है, और फिर बच्चों के साथ इंडिविजुअल लेसन प्लान बनाकर, लर्निंग प्लान बनाकर बच्चों के उस लर्निंग को कंसोलिडेट करना है. ये प्रोग्राम 18 फरवरी से लेके 31 मार्च तक था. लॉकडाउन तक टीचर्स ने बहुत मेहनत करी, असेसमेंट बहुत अच्छी सी हुई है, लेकिन एट द एंड ऑफ इट द थर्ड फेज था, एंडलाइन हम नहीं करा पाए. एंड वी आर नाउ होपिंग कि जैसे स्कूल्स रीओपन होंगे और बच्चे स्कूल्स में वापस आएंगे तो हम इस प्रोग्राम को रीलॉन्च करेंगे. इसका एक सर्कुलर आप देखेंगे कि 17 फरवरी को इश्यू हुआ था. इफ यू कैन गो थ्रू इट, द रूब्रिक्स आर देयर फॉर यू टू चेक. अठारह फरवरी को ही हमने सभी क्लासेस के लिए, प्राइमरी की क्लासेस के लिए एक रीडिंग कैंपेन शुरू किया था, और वो भी लॉकडाउन तक सभी स्कूल्स में बहुत ही इंटेंसिव रूप में चला. और स्कूलों से जो रिपोर्ट्स आई वो भी बहुत हार्टनिंग थी कि बच्चे कैसे पढ़ने के लिए उत्सुक हो रहे हैं. ये कुछ बहुत बड़ी बुक्स या आई वुड से मार्केट से कोई किताबें कुछ नहीं ली गई. स्टोरी कार्ड्स बनाई गई जो सिर्फ 4 पेज की थी. उसमें फॉन्ट बड़ा, बच्चों से इंटरेस्टिंग, बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ओनली 4 साइड्स, तो ताकि हम बच्चों की अटेंशन स्पैन को पकड़ के रख सकें. और ये सभी स्कूलों ने डाउनलोड करके प्रिंट करा के अपने स्कूलों में यूज करी थी. तो यू मस्ट आस्क द प्राइमरी इंचार्जेस टू टेल यू हाउ दी स्टोरी रीडिंग कार्ड्स वर यूज्ड. उसके बाद क्लोजर हो गया, बच्चे स्कूल आने बंद हो गए, तो पर ये प्रोग्राम बंद नहीं हुआ. हमने अपने मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम के चेन के थ्रू हमने इन स्टोरी कार्ड्स को ऑडियो का बैकअप दिया, वीडियो का बैकअप दिया, और बच्चों को पहुंचाते गए. ऐसे ही एक स्टोरी का रीडिंग कार्ड की झलक आपके स्क्रीन पर है. पेपी एंड जेपी, 2 पपीज, एक पपी बंधा हुआ रहता था, एक पपी खुला घूमता था, एंजॉय करता था. तो किस तरीके से दोनों पपीज ने फ्रेंडशिप करी और फिर दोनों घूमने गए. 4 पेज की ये स्टोरी है, चारों पेज आपके सामने हैं, और बच्चों ने इन स्टोरीज को बहुत एंजॉय किया है एंड उनकी रीडिंग एबिलिटीज में बहुत इजाफा हुआ है, बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है. प्राइमरी ब्रांच का एक पायनियरिंग एफर्ट रहा है. डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में पहली बार एक ब्लॉग बना जहां पर हम
लाइब्रेरी के सारे एफर्ट्स को शोकेस करते हैं, जिसका नाम है लाइब्रेरी ब्लॉग। ये अगर आप अपने स्क्रीन के टॉप बार पर देखेंगे तो आपको स्कूल इंफॉर्मेशन, कोर्सेज एंड करियर्स, अटेंडेंस रिपोर्ट के बाद लाइब्रेरी ब्लॉग का आइकन दिखेगा। ये पूरे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में दिस वाज द पायनियरिंग एफर्ट। और आप अगर उस ब्लॉग में जाएंगे तो लाइब्रेरी एनरिचमेंट से जुड़े सारे आपको जो फीचर्स हैं बिल्कुल हैंड्स ऑन आपको वहां पर मिलेंगे। उसी तरीके से इफ यू गो डाउन द पेज, आप देखेंगे एक येलो कलर से सर्कल किया है, यहां पर प्राइमरी ब्लॉक का लिंक मिलेगा। सो होम पेज पर प्राइमरी ब्लॉक का लिंक है जो कि पब्लिक डोमेन में है, और प्राइमरी से जुड़ी तमाम इनिशिएटिव्स, स्कूलों के एफर्ट्स and anything interesting that is to do with primary education is put up on the blog for your reference. मेरी यहाँ से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्राइमरी ब्लॉग में आपके स्कूल के भी अगर कुछ वेरी यूनिक इनिशिएटिव है तो आप उसको कंसोलिडेट करके आप हमारे को जरूर भेजिए। वी वुड लाइक टू अपलोड योर स्कूल एफर्ट ऑन द प्राइमरी ब्लॉग। सो कोविड के दौरान क्लोजर हुआ, हमारे बच्चे कई महीनों से घर पर हैं। सो वी क्लासेस भी हो रही हैं, वर्कशीट्स भी जा रही हैं, पर थोड़ा लाइटर साइड भी हमने रखना है। ऐसा देखते हुए हमने एक रीडिंग टाइम कैंपेन शुरू किया था जो कि 17 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक चला, इंटरनेशनल लिटरेसी डे तक। और इसमें हमने 3 प्रकार के स्टोरी कार्ड्स बच्चों के साथ शेयर किए जो सिर्फ ऑडियो थे, फिर वो जो ऑडियो और वीडियो थे, और फिर लास्ट जो सिर्फ टेक्स्ट थे जिसको बच्चा खुद रीड अलाउड करता था। इसके साथ साथ फ्लिप बुक्स भी हुई। इसकी पूरी डिटेल आपको लाइब्रेरी ब्लॉग में मिलेगी, कौन कौन सी किताबें गई और वो बच्चों ने कितने, और डेटा भी है कि कितने बच्चों ने उन्हें एक्सेस किया। मार्च के महीने से ही प्राइमरी ब्रांच एसएमएस के थ्रू और आईवीआर के लिए एक्टिविटीज बना ही रहा है, केजी से लेके क्लास 5 तक। जुलाई से लेके अक्टूबर तक जेनेरिक सब्जेक्ट एग्नोस्टिक वर्कशीट्स भी बनती रही। प्राइमरी टीचर्स कोर एकेडमिक यूनिट के साथ जुड़े थे और वहां से बनती थी। अक्टूबर के बाद प्राइमरी ब्रांच ही इन वर्कशीट्स को आगे लेके चला है, जिसमें हर क्लास के लिए 6 वर्कशीट्स बनती हैं हर वीक में, और वो सब्जेक्ट बेस्ड है, टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ा हुआ है, सिलेबस के साथ लिंक्ड है और लर्निंग आउटकम्स के साथ सेंटर्ड है। तो ये वर्कशीट्स आपको भी मालूम है, आप भी देख रहे होंगे कि आपके केजी के बच्चों से लेकर क्लास 5 के बच्चों तक के लिए एवरी वीक 36 वर्कशीट्स जो जाती हैं वो प्राइमरी ब्रांच और प्राइमरी टीचर्स, आप ही के हो सकता है आपके स्कूल की भी कोई टीचर इसमें इन्वॉल्व हो, बहुत मेहनत से, बहुत सोचते हुए, बहुत प्लान करके ये वर्कशीट्स बन रही हैं। एंड आई विल टेक दिस फोरम टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू for the immense support that we have received from the schools to help us make these worksheets. इस वर्कशीट्स की एक खासियत है, 3 सेक्शंस में है ये वर्कशीट। पहला सेक्शन तो टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ा हुआ है, जो बीच का सेक्शन है वो जेनेरिक है, यानी कि वो डायरेक्ट सिलेबस या टेक्स्ट बुक से नहीं है, पर हाँ उसके काम आएगा बच्चे का टू नो दैट पार्ट। लेकिन लास्ट पार्ट जो है, जो अभिभावकों के लिए सुझाव के अंदर आता है, वो हमने इस तरीके से प्लान किया कि उसमें बच्चे को कोई लाइफ स्किल दी जाए। कुछ सैंपल वर्कशीट्स आपके पास स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। सबसे आखिर में देखें तो अभिभावकों के लिए सुझाव, जो मैं लाइफ स्किल की आपसे बात कर रही थी। जेनेरिक कंपोनेंट देखिए, हमने 3 दिसंबर को बच्चों को ये बताया कि वो दिन इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज है और किस तरीके से हमें सेंसिटाइज होना है या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के साथ बहुत सेंसिटिविटी से काम करना है। ये एक जेनेरिक कंपोनेंट हुआ। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एंड अदर यूसेज ऑफ द वर्ड और द लेटर डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द क्लास। नाउ ऑन योर स्क्रीन अगर लेफ्ट साइड में देखें आप तो एक क्रिएटिव राइटिंग का शीट है जिसका टाइटल है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। बहुत फेमिलियर लग रहा होगा आपको। ये जो मिशन चला था अभी और अभी भी चल रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से, कि
रेड लाइट पर आपने अपना गाड़ी ऑफ करना है। तो हमने इसी को बेस करके बच्चे को क्रिएटिव राइटिंग दिया, ताकि बच्चे को पता हो कि उसके आसपास की जो भी हो रहा है उसके बारे में जानकारी हो, और वो बच्चे का क्या रोल हो सकता है टू इम्प्रूव लिविंग कंडीशंस। इसी में आप देखेंगे नीचे एक बॉक्स में आपको दिया गया कि 2 दिसंबर किस चीज के रूप में मनाया जाता है, उसके पीछे का कारण क्या है, प्रदूषण रोकने का है, और क्यों मनाया जाता है, that is being told to the children. So these worksheets are a mine of information and learning. ऑनलाइन ट्रेनिंग भी इन दिनों हम करते रहे क्लोजर के टाइम। चेष्टा केयर के साथ मिलकर हमने एक क्राफ्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग की ट्रेनिंग कराई है 100 मास्टर ट्रेनर्स को, और इसको हम आगे और टीचर्स तक लेके जाने का प्लान बना रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे टू रीच आउट है टू द चिल्ड्रन थ्रू स्टोरी टेलिंग। So going to the last slide. First of all, I must thank you all for the immense patience with which you've heard me. And I think now I'll open the floor for your questions. Again, I repeat, we have made 3 requests to you. एक, आप लाइब्रेरी के पेंडिंग बिल्स 2019-20 के मेगा बुक फेयर के चेक करके अगर हैं तो अपने डीडी जोन से काउंटर साइन कराकर हमारे पास पहुंचा दीजिए। अगर आपके पास असिस्टेंट टीचर्स सेक्शन वाइज की सैंक्शन स्ट्रेंथ +1 प्राइमरी इंचार्ज के लिए नहीं है तो भी आप फाइल बनाकर डीडी जोन से काउंटर साइन कराकर हमारे पास भिजवा दीजिए। एंड थर्डली, जोनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से अपने वर्कबुक्स अगर नहीं मंगाए हैं तो मंगाकर कोविड बिहेवियर, जो कोविड एसोसिएटेड बिहेवियर के प्रोटोकॉल्स हैं, उसको फॉलो करते हुए विंटर वेकेशन से पहले अपने बच्चों तक किताबें पहुंचा दीजिए। Thank you so much. And now open the floor for you. Okay, ma'am. Am I audible to you, ma'am? Am I audible to you, ma'am? Yes, sir, you are. Just give me a minute. I'll come back to the main screen. Okay, ma'am. Thank you. I think we are back. Yes, sir. First of all, I am very thankful to you for your information that has been provided to us. Welcome, sir. Useful information of the level of the primary level. As being the HOS and also the teachers, like when I had been in the school, I had observed so many things like, see, later you can reply me, let me say it, but this shall be, as far as I have observed, ma'am, see, in our primary level, see, our teachers now, the role of the teachers should be very important. As we see, for an example, like abroad in European countries, the role of the teachers in the primary level is a very, very strong one. The children should be taken into their notices and their appraisals on the basis of the teachers. See, on what stream or what level or what strength they have to be tackled in the future. But see, if we compare Indian education, ma'am, see, our stream is changed to the secondary or senior secondary level. And that is something very contrary to our country, to a European country, when the education should be demanded to the international level, isn't it so, ma'am? So on that level, I can say, see, you are dealing with the primary level education, and that is why this will be my advice to you. You see, a European country, they choose the stream to the primary level. When the student is having a choice of medical, a choice of culture, choice of music, that has been decided to the primary level. So, but in our countries, the primary level is taken into the joyful playway. And see, that time for 8 years around, actually, when someone is going in the medical sciences, so he or she felt that the primary level time has been also exploited. This should have been utilized during the course of time. So that I want to know, now what shouldn't be here in the primary level? See, our teachers should be so strengthened and so strong, so the children should be tackled into that particular thing, not the students one. Yes, sir. Allow me to answer you, sir. First of all, I would like to ask you about a specific example of which country does this. They decide the stream in primary itself. I am very curious to know this. I came to know that by you people scholars, as someone is telling me in the no, sir. America.
It is in America. America. Well, sir, first of all, I would like to go and I would like to do a bit of research before I comment on this. I am not very sure as of now, till now, I have not come across an instance where the medical profession or the engineering profession is decided at the primary level itself. I might be wrong or I might be ignorant here. So I would like to really know which country is doing it and how are they doing it. As far as I feel, being a parent and a teacher for so many years, that primary level is too early to decide what the child is capable of. The aptitude, the attitude of the child cannot be determined at the age of 4 or 5 or 9 or 10. Yes, indeed, one can gauge what is the child, what is the child's inclination. Whether the child is inclined towards arts, aesthetics, music, that can be done. That can be definitely gauged. But we can also develop these skills in all the children. We can't brand children that early in life, is my feeling, sir. But I will definitely look, and I would request you to give me some detailed information about this, sir. My number would be shared to you by Nishtha, and maybe you can exactly tell me which county, which state in America, which school in America is doing this. Let's not go by hearsay, sir. You are not understanding me, ma'am. That's what I wanted to tell you. It is the inclination only. That is the period of the teacher's life. Yeah. Yes. Here, not the particular the option of the 8 years, the time of the teachers. Definitely. They are going to select it. That's what. So if the child, yes, everything, right from skills of gripping to writing to expressing, everything comes as part of primary education. Yes, sir. Thank you, Mr. Mahesh Kumar, sir. Can we take the next question, please? Your good name, madam? My name is Maithili. Maithili. जी सर, पूछिए सर। हाँ जी सर, बताइए। एक्सक्यूज मी मैम। यस सर। सर मैं 2 क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम प्राइमरी इंचार्ज बनाते हैं वो क्या सीनियर मोस्ट टीचर को ही बना मेरी या जो हमें लगता है कि ज्यादा एनर्जेटिक हैं या हमारे हिसाब से ज्यादा योग्य हैं उन्हें बना देते हैं? जी सर, अगर आप जी सर और पहले आपके जवाब अभी जवाब भी दे दूं साथ साथ। अगर आप 22 जून 2017 का सर्कुलर पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़िएगा सर, उसमें हमने बहुत क्लियरली लिखा है कि सीनियर टीचर का इसमें कोई रोल नहीं है। कि हमारा मतलब है जो आप कह रहे हैं, टीचर डायनामिक होनी चाहिए, टीचर योग्य होनी चाहिए और टीचर में वो एबिलिटी होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। आप सब कुछ आप ही तय कर सकते हैं सर। एचओएस को इसमें पूरा अधिकार है डिसाइड करने का कि कौन सी असिस्टेंट टीचर, वेदर सीनियर और जूनियर, इमटेरियल ऑफ दैट, कैन लीड द प्राइमरी। मैडम जी नमस्कार। नहीं सर, अभी आपका दूसरा क्वेश्चन। हाँ जी सर। जी मेरे दूसरा सवाल ये था कि मैं अपने मतलब खुद भी काफी सारी किताबें थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ, तो कुछ मैगजीन मुझे बड़ी अच्छी लगी। हो सकता है मैं आपको अभी कहें तो मैं दिखा भी दूंगा, मैंने अपने यहाँ इकट्ठी कर ली है वो। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि उन्हें स्कूल में मंगाया जाए। तो अब मैंने अपने लाइब्रेरियन से भी बात की थी, तो वो कहते हैं कि जो इसी आजकल लाइब्रेरी फेयर लगता है उसके थ्रू ही हम किताबें मंगा सकते हैं। जी सर। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको एक सेकंड। जैसे ये किताब है चकमक, बड़ी मशहूर किताब है, आप देख पा रही हो अगर तो। और बच्चों के लिए किताब है ये। एक जैसे दूसरी किताब है ऑर्बिट भी बड़ी अच्छी किताब आती है बच्चों के लिए। और एक साइकिल किताब बड़ी अच्छी शुरू हुई है बच्चों के लिए, ये बहुत ही शानदार किताब, एक मतलब मैगजीन है ये किताब है कि मैगजीन है सर? हाँ मैगजीन है, मैगजीन है। हाँ सर, तो आप अगर एक जैसे ये बड़े बच्चों के लिए संदर्भ आती है किताब। तो मैंने कई बार कोशिश भी की, एज ए टीचर भी मैंने कई बार ये कोशिश की कि भाई स्कूलों में भी मंगवा पाए,
तो जब भी मैंने अपने HUS से एज ए टीचर जब मैं था बात की, तो उन्होंने हमेशा फंड्स की लेक का हवाला किया। तो अब मैं पर्सनल लेवल पे तो अपने बच्चों को ये मंगा देता हूँ, जिन क्लासों में मैं कभी पढ़ा रहा था, या अपने निजी जी जी जो मेरे अपने जी जी बच्चे जी हैं जी उनके जी। लिए अपने पर्सनल लेवल पे मंगाता हूँ। लेकिन एज ए HUS अगर मैं स्कूल में इन्हें मंगाना चाहूँ, या आप हाँ इस जी। चीज का इनिशिएटिव लें, तो मैं थोड़ा सा इस बात में थोड़ा जानना चाह रहा हूँ अच्छा कैसे ठीक मंगा है सकते हैं और कौन से हाँ फंड जी से। ठीक है अतीत जी। ऐसा है कि लाइब्रेरी के सर्कुलर्स को जरा आप एक बार गो थ्रू करेंगे, तो हमने वहां पर मैगजीन्स और जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स, ये कौन कौन सी लेनी है, कितनी लेनी है, किस प्रकार की लेनी है, पूरी गाइडलाइंस है सर। एक बार आप उस सर्कुलर को एक बार देख लीजिएगा, और देन आई थिंक आपका जो आपका जो इश्यू है ये रिजॉल्व हो जाएगा सर। So if I would suggest, sir, that you can go through that circular, उसमें कितनी लेनी है मैगजीन, किस प्रकार की लेनी है, न्यूज़पेपर्स कौन से लेने हैं, कितने लेने हैं, सब कुछ स्पेसिफाइड है। So that should be a guideline for you, sir. नहीं, जैसे ये जो मैगजीन्स वगैरह है जो मुझे पसंद आई, तो अगर आप अपने लेवल पे भी इनको थोड़ा ध्यान दें, मैं बता देता हूँ। एक तो एकलव्य, जिसने होशंगाबाद में बहुत काम किया था प्राइमरी में, वो लोग ये मैगजीन निकालते हैं, एकलव्य और ये संदर्भ। और तक्षशिला सोसाइटी है, वो भी भोपाल से ही है, हाँ वो भी बड़ी अच्छी जी। मैगजीन बच्चों के लिए निकाल रहे Yes, हैं। तो अगर आप अपने लेवल पे देख लें इन दोनों को, हाँ, और अवेलेबल करा पाए I स्कूलों में। hope I will take that into consideration, sir. अभी तो हम सिर्फ बुक सेलेक्ट करते हैं, और मैगजीन्स का हमने फ्रीडम दिया हुआ है स्कूल्स को, सब्सक्रिप्शन की फ्रीडम आपको दी हुई है। तो पहले आप उस सर्कुलर को जांच लें सर, मेरे ख्याल से रिजॉल्व हो जाएगा। नहीं हुआ तो देन प्लीज गेट बैक टू मी। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक जी। नमस्कार सर। हाँ, ये एक तो हमारे जो प्राइमरी के जो बच्चे हैं, KG टू फर्स्ट और सेकंड के, उनके राइटिंग इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे पास कर्सिव बुक्स वगैरह भी हैं क्या, ऐसा है? कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन सर, एक बार और बोल दीजिएगा सर, वॉइस तो ब्रेक बहुत हुआ था। बच्चों की राइटिंग के लिए कर्सिव जो बुक आती है प्रैक्टिस के लिए, जी तो क्या वो अवेलेबल हैं? हाँ सर। हो सकता है कर्सिव, पहले थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। ये बहुत एक टॉपिकल इश्यू भी है, तो मैं यहाँ पर अच्छा प्लेटफॉर्म है इसके बारे में कुछ कहने का, डिस्कस करने का। जब हम बड़े हो रहे थे, तब हम कर्सिव राइटिंग करते थे, और ये कहा जाता था कि हैंड राइटिंग, कर्सिव राइटिंग, हैंड राइटिंग, इस पे कर्सिव राइटिंग पे बहुत फोकस था। लेकिन अब जो है टेक्नोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और यूज ऑफ कंप्यूटर, यूज ऑफ टाइपिंग इतना ज्यादा हो गया है कि आप देखेंगे कि आप कुछ भी अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो कुछ भी कर्सिव नहीं होता। तो कर्सिव राइटिंग पर आजकल जो है एजुकेशनिस्ट रेकमेंड नहीं कर रहे हैं। इस पे बहुत बड़ी चर्चा भी हुई है, और अगर आपके कुछ व्यूज हैं इसके इसके विपरीत या एडिशन सपोर्ट में, तो प्लीज शेयर कीजिएगा। जब बच्चा बड़ा होता है तो बच्चे की राइटिंग आती, समझ में नहीं आती टीचर्स की, बच्चे को नहीं सर आती, बच्चे को कैसे करेंगे? नहीं तो आप फोर्स मत कीजिएगा उन्हें कर्सिव में लिखने के लिए। latest in educational technology is not for cursive. राइटिंग इंप्रूवमेंट के लिए क्या प्रोसेस अपनाएंगे? सर राइटिंग इंप्रूवमेंट के लिए अक्षर की फॉर्मेशन पे बहुत जोर दीजिएगा सर। अक्षर की फॉर्मेशन अगर बच्चे की अच्छी है, तो अगर वो जोड़कर के बिल्कुल कर्सिव में नहीं लिख रहा है तो भी बहुत सुंदर आती है सर राइटिंग। मेन इंप्रूवमेंट की बात है ना सभी बच्चों की राइटिंग के लिए। हाँ सर, इम्प्रूवमेंट के लिए राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है। इम्प्रूवमेंट के लिए कर्सिव की बहुत आवश्यकता नहीं है सर। इंप्रूवमेंट भी, और जरा प्राइमरी के लिए कुछ फंड्स वगैरह हो जिससे हम क्लासेस वगैरह डेकोरेट कराएं, एक्स्ट्रा फंड। सर आपको तो मेरे ख्याल से समग्र शिक्षा से भी फंड मिलता है प्राइमरी के लिए अलग से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से समग्र शिक्षा के फंड। 11,000 रुपए होते हैं, उसकी कुछ नहीं होता जी क्लास में। और 10,000 आपको, 10,000 तो आपको, आप पूरे प्राइमरी को देख रहे हो। ठीक है सर, आपकी रिक्वेस्ट मैंने नोट कर ली सर। हाँ, प्राइमरी के लिए अलग से फंड दो, जिससे क्लासें वगैरह बाहर का पोर्शन अट्रैक्टिव हो, बच्चा देखते ही खुश हो जाए क्लास को। जी सर, जी सर, आई हैव टेकन डाउन योर रिक्वेस्ट। वैसे जब मैंने ये इस पर हमने फाइल मूव किया था, तो हमें यही कहा गया था कि एसएमसी के फंड में भी बहुत सारा प्रोविजन है,
तो पहले आप उसको एग्जॉस्ट कर लीजिए. सो नेवरदलेस आई हैव टेकन डाउन योर रिक्वेस्ट एंड आई विल टेक इट अप सर. Any other question? Sorry. Do you have any more question? कोई पार्टिसिपेंट कोई सवाल पूछना चाहते हैं? Am I audible, ma'am? Yes, sir, you are. मैम आरटी एक्ट 2009 कहता है कि प्राइमरी सेक्शन में एडमिशन थ्रू आउट द ईयर होती है जी. और एक सेक्शन में जो स्ट्रेंथ है, जैसे हमारे दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, एक सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स हम अलॉट करते हैं. कितने सर? 40. यस सर, 40. सर्वोदय विद्यालय में 40. जी सर. हाँ जी मैम, अगर हमारे पास और एडमिशन की डिमांड आती है तो हम उसको DD के थ्रू भेजते हैं, डिमांड भेजते हैं. अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लो स्कूल के अंदर जो एडमिशन के लिए बच्चे आ रहे हैं वो हम उनको रजिस्टर भी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास रूम्स अवेलेबल नहीं है, एक्स्ट्रा रूम अवेलेबल नहीं है. और हम डीडी जोन या आगे डीडी जोन के थ्रू डीडी डिस्ट्रिक्ट के पास भेजते हैं तो कहते हैं कि रूम्स अवेलेबल हैं या नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली हम रिस्पॉन्ड करते हैं. और रूम्स अवेलेबल नहीं है तो कैसे उन बच्चों को हम एनरोल करें? सर डेफिनेटली अगर रूम्स नहीं है तो आप एडिशनल सेक्शन नहीं बना सकेंगे सर, बिकॉज बच्चे को, प्राइमरी के बच्चे को तो खास तौर पर एक्टिविटीज वगैरह कराने के लिए यू नीड टू गिव देम स्पेस. सो आप स्कूल में एडमिशन उतना ही कर पाएंगे सर जितना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है. इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड कीजिए, EOR की प्रस्तुति कीजिए, सेपरेट ब्लॉक की प्रस्तुति कीजिए कि आपके स्कूल में अलग से प्राइमरी ब्लॉक बन जाए. तो अगर अलग बिल्डिंग बनने की जगह है तो वो परस्यू कर लीजिए. इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको फोकस करना पड़ेगा सर. कैसे आप अपने स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे? तो मैम अगर उनका एडमिशन नहीं करते तो आरटी एक्ट 2009 जो है वो वायलेट होता है. और नहीं सर वायलेट नहीं होता, क्योंकि हमारे लोकल बॉडीज के स्कूल्स भी हैं तो वो MCD के स्कूल में एडमिशन लेंगे और फिर फीडर स्कूल में 6th क्लास में आएंगे सर. ठीक है मैम, ठीक है. हाँ, थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू. Any other question, please? Yes, ma'am. Good morning. Good morning, It's sir. Dr. Puran Singh. It's Dr. Dr. Puran Singh. Puran Singh, namaste. अच्छा मैम. मैम Yes. मेरा एक अभी आपने लोकल बॉडीज के स्कूल्स के बारे में कहा, जो कि हमारे यहाँ फीडर स्कूल्स होते हैं MCD से. हमारे यहाँ पर स्ट्रेंथ आती है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, सर्वोदय स्कूल्स में. जी. मैम सर्वोदय में नहीं, सभी में आती हैं. हाँ यस मैम, सभी में आती हैं. मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हमारे सर्वोदय स्कूल से बच्चे आगे अपलिफ्ट होते हैं, यानी प्राइमरी से विंग से हमारे जो मिडिल विंग में आते हैं, उन बच्चों का जो एक तरह से लेवल है वो काफी अपडेट होता है और अच्छा हम लोग कर लेते हैं. जैसा कि आप लोग इनिशिएटिव ले रहे हो, प्राइमरी जो अभी आपने बनाया ब्लॉग, इसके माध्यम से, और बहुत जब से सर्वोदय शुरू हुए हैं जब से ही एक चेंज आया है प्राइमरी लेवल पर. लेकिन मैम MCD के जो स्कूल्स हैं वहां से काफी बड़ी तादाद में हमारे बच्चे इधर होते हैं. तो क्या हमारा मैम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की कोई मॉनिटरिंग टीम भी है वहां पर, जो MCD के लिए जो इनिशिएटिव जो आप यहाँ ले रहे हैं अपने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल्स में, वहां पर भी इनिशिएटिव से वो लिए जा रहे हैं जैसे कि आप यहाँ पर ले रहे हैं मैम? क्या MCDs में क्या आप कुछ इंटरवीन कर सकते हैं जैसा कि आप यहाँ कर रहे हैं? और यहाँ की बहुत इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है, सेटिस्फैक्टरी है. और हर कोई बच्चा चाहता है कि सर्वोदय वाले बच्चे हमारे पास आए, लेकिन MCD का जो लेवल है बच्चों का वो उतना मतलब अप टू मार्क नहीं हो पाता जितना कि हमारे सर्वोदय का है. जी मैम. पूरन सिंह जी, पहले तो आई वुड लाइक टू से दैट हम जनरलाइज बिल्कुल नहीं कर सकते. बहुत सारे MCD के स्कूल्स में बहुत ही हाई लेवल ऑफ एजुकेशन आ रहा है, बच्चे बहुत अच्छे निकल कर आ रहे हैं. उसी तरीके से बहुत सारे सर्वोदय विद्यालय में देखा गया है कि बच्चे रीडिंग गैप्स के साथ भी हैं. तो हम वी शुड नॉट फर्स्ट ऑफ ऑल जनरलाइज. सेकेंडली, हमारा जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, हमारा डायरेक्ट इंटरवेंशन MCD के स्कूल्स में नहीं है. लेकिन हाँ, समग्र शिक्षा के थ्रू आजकल बहुत सा एक्सचेंज हो रहा है. जैसे जो हमने अभी वर्कबुक्स बनाई हैं, MCD ने भी हमसे लेकर गए हैं कि वो शायद वो भी छपाना चाहते हैं, या उस तरीके से एक प्लेटफॉर्म बना है
एक प्राइमरी सेल बना है समग्र शिक्षा में, जो कि डीओई के एफर्ट्स को और एमसीडी के एफर्ट्स को दोनों को शेयर कर रहे हैं. सो वी आर होपिंग दैट इन अ कपल ऑफ इयर्स सब कुछ स्ट्रीमलाइन होकर सब सारे जो एमसीडी के इनिशिएटिव्स है वो यहाँ है, यहाँ के इनिशिएटिव्स वहां जाए. तो इस पर काम चल रहा है सर. थैंक यू मैम. थैंक यू सर. Any other question? जी जी सर बोलिए. क्या है सरकार का ये डिपार्टमेंट को, ताकि जो शिक्षक बना रहे हैं, जैसे कि महेश कुमार जी मैं आपको बिल्कुल सुन नहीं पाई, तो शायद सबको अनम्यूट करना पड़ेगा बाकी सबको. हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या एमसीडी को दिल्ली सरकार टेक ओवर करने जा रही है क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट को कुछ समय में? सर इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है सर. Okay, so thank you so much, ma'am. It was very informative. Thank you very much. Thank you very much, Nishta. I hope सभी. Thank you.